ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 14 جون 2020 مطابق 21 شوال المکرم کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صفحے اول پر شاید سب سے اہم خبر میں سرخی ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ نیپال پارلیمنٹ کے فیصلے پر ہندوستان کا سخت اعتراض۔ بھارت نے آج نیپال کی جانب سے نقشے میں بدلاؤ کرنے اور کچھ ہندوستانی علاقے کو شامل کرنے سے وابستہ آئینی ترمیم آرڈیننس کو پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے ذریعے پاس کیے جانے پر کہا کہ یہ مصنوعی توسیع ثبوت اور تاریخی حقائق پر مبنی نہیں ہے اور اس کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ بھارت نے کہا کہ یہ زیر التوا سرحدی مدعوں کا بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی ہماری موجودہ سمجھ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے اپنے بیان میں کہا، ہم نے نیپال کے ذریعے نئے نقشے میں بدلاؤ کرنے اور کچھ ہندوستانی علاقے کو شامل کرنے کے آرڈیننس کو وہاں کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں پاس ہونے کو دیکھا ہے۔ ہم نے پہلے اس معاملے میں اپنی صورتحال واضح کر دی ہے۔ بتاتے چلے کہ نیپال نے کالا پانی، لنک پیادھورا اور لیپو لیک علاقوں کو نقشے میں شامل کر لیا تھا۔ کابینہ کے سینئر وزراء اور سینئر افسروں کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی میٹنگ کی اطلاع صفحے کی دوسری جانب ہے، جس میں پی ایم او کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے افسروں کے ساتھ میٹنگ میں دہلی سمیت مختلف صوبوں میں موذی مرض کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران راجدھانی دہلی کی موجودہ حالات کو لے کر بھی چرچا ہوئی اور آئندہ 2 ماہ کے اندازوں پر بھی بات ہوئی۔ اس دوران وزیر اعظم نے صلاح دی کہ مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر صحت ایل جی اور دہلی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایمرجنسی میٹنگ بلائیں، جس میں مرکزی حکومت کے سینئر افسران اور تینوں نگر نگم کے میئر بھی موجود رہیں۔ ادھو ٹھاکرے کا قول اسی خبر سے متصل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے مہاراشٹر میں دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن عوام کہیں بھی بھیڑ نہ لگائے۔ حج سے متعلق خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال حج موقوف رکھنے کی قوی امید ہے۔ سعودی حکام اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے حج موقوف رکھنے پر غور کر رہے ہیں۔ بتاتے چلے کہ زیر غور تجاویز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عازمین کی تعداد 80% کم کر دی جائے یا صرف محدود غیر ملکی وفود کی سطح پر حج انتظامات کیے جائیں۔ این ڈی ایم سی یعنی نئی دہلی میونسپل کونسل نے ایک بیان جاری کر کے آج کہا کہ میونسپل کونسل کے کچھ ملازم کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کچھ اسپتالوں میں اسپتال انتظامیہ اسپتالوں میں جانے پر کورونا مریض ملازموں کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ ان خامیوں کو دیکھتے ہوئے نئی دہلی میونسپل کونسل یعنی این ڈی ایم سی نے اپنے تمام کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثرہ موجودہ اور ریٹائرڈ اور ان کے کنبے کے اراکین کے لیے طبی سہولت علاج کو یقینی بنانے کے مقصد کے تمام درج فہرست اسپتالوں لیبارٹریوں کو سخت ہدایت دیتے ہوئے سی جی ایچ ایس کے معیارات، اصولوں اور شرائط کے مطابق علاج اور دیگر طبی سہولیات مہیا کرانے کی ہدایات دی ہیں۔ ان خبروں کے علاوہ ملک میں کورونا کے ریکارڈ 11,458 نئے معاملے، مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز۔ دہلی میں کورونا بحران کے پیش نظر امت شاہ، ایل جی اور کیجریوال کے ساتھ میٹنگ آج، اور جموں کشمیر کے سابق پولیس سربراہ ڈاکٹر شیش پال وید کے اس قول کو بھی جگہ ملی ہے، جس میں انہوں نے وادی کشمیر میں ہندو پنڈتوں اور ان مسلمانوں جنہیں بقول ان کے خطرہ لاحق ہے اسلحہ اور ان کی تربیت فراہم کرنے کی حمایت کی ہے۔ عالمی صفحے پر پہلی خبر کی صورت میں برازیل میں کورونا کی وجہ سے ہونے والی اموات کا ذکر ہے، جس کی تفصیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ برازیل کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 909 ہلاکتیں ریکارڈ کی، جس کے بعد 21 کروڑ 20 لاکھ افراد کی آبادی پر مشتمل ملک میں اموات کی تعداد برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 41,828 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب شائع خبر اقوام متحدہ اور ایران سے متعلق ہے، جس کی سرخی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کی رپورٹ کو ایران نے مسترد کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کو ختم کرنے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے متعلق امریکی سازش کا حصہ نہ بنے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت نے اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کی رپورٹ پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ایران اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہے۔ گلزار دہلوی کے انتقال پر برلن کے عارف نقوی کی تعزیت کو بھی اسی صفحے پر جگہ دی گئی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، اردو زبان و ادب سے گلزار زوتشی کی والہانہ محبت بے مثال تھی۔ میری ان سے پہلی بار ملاقات 61 برس قبل 1959 میں ہوئی تھی، جب میں عوامی دور میں سجاد ظہیر کے ساتھ کام کرنے کے لیے دہلی گیا تھا۔ گلزار زوتشی صوفیانہ خیالات کے تھے اور میں ترقی پسند تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جس محبت اور بڑے بھائی کسی شفقت سے ملے، اس سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ آگے اپنے تعزیتی بیان میں کہتے ہیں کہ گلزار زوتشی کی وفات اردو زبان و ادب کا ایک بہت بڑا خسارہ ہے، جس کا احساس بر اعظم سے باہر، خصوصاً جرمنی کے
اردو دا حلقے بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمات کے احترام میں اپنا سر خم کرتے ہیں۔ اس موقع پر اردو انجمن برلن اور یورپین لٹریری سرکل اور چلڈرن چیریٹیبل سوسائٹی برلن کے اراکین نے گلزار دہلوی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چین سے متعلق اہم خبر صفحے کے ذیلی حصے میں نمایاں ہے، جس میں چین میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے چلتے بیجنگ میں 45 کیس رپورٹ بھی کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چین میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر بیجنگ کے جنوبی مغربی ضلع فینگتائی میں ہفتے کو حکام نے 45 کیس رپورٹ ہونے پر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بیجنگ شہر کے ترجمان نے بتایا کہ جمعے کو شہر میں جن 5 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے انہوں نے فینگتائی کی ہول سیل مارکیٹ کا دورہ کیا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی رپورٹ مثبت آئی ہے ان میں کورونا کے علامات ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ ان اہم اطلاعات کے علاوہ بنگلہ دیش میں 72 سالہ سابق وزیر صحت کی کورونا سے موت، میکسیکو میں کورونا انفیکشن سے مزید 544 افراد ہلاک، ترکی چین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار، اور پاکستان کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا اعلان بھی صفحے پر نمایاں ہے، جس میں انہوں نے پاکستانی معیشت پر منڈلاتے خطرے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے معیشت کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ 14 جون کے ریاستی صفحے پر اودھ نامہ نے وزیر اعلیٰ کی خبر کو نمایاں کیا ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، وزیر اعلیٰ نے مزدور کنبوں کے اکاؤنٹس میں 104 کروڑ 82 لاکھ روپے آن لائن ٹرانسفر کیے۔ یہ امدادی رقم ٹرانسفر کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وبا کے دوران ریاست نے بہترین کام کیا جو ملک کے لیے مثال بن گیا ہے۔ فی الحال پوری دنیا عالمی وبا کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے۔ بحران کے اس دور میں ہر ایک کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم بطور ٹیم ورک کام کرتے ہیں اور پورا سسٹم اس کے ساتھ منسلک ہے تو اس کے نتائج بھی مثبت آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وبا کے دوران محکمہ ریونیو اور راحت کمشنر دفتر نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ریاست کے 35 لاکھ کارکنوں مزدوروں کو ناگزیر حالت میں وطن واپس آنا پڑا۔ واپس آنے والے کارکنوں مزدوروں کو غذائی اجناس مہیا کرایا جا رہا ہے۔ اس کٹ میں 10 کلو آٹا، 10 کلو چاول، 5 کلو آلو، 2 کلو بھنا چنا، 2 کلو ارہر کی دال، 500 گرام نمک، 250 گرام ہلدی، 250 گرام مرچ، 250 گرام دھنیا اور 1 لیٹر سرسوں کا تیل شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بیان پر مشتمل دوسری خبر باکس میں شائع ہوئی ہے، جس میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ انسانی وسائل صنعتی دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی مزدوروں کی صورت میں اب ریاست میں موجود ہے۔ مزدوروں نے اپنے پسینے سے سماج اور ملک کی تعمیر کی ہے۔ ریاست میں مزدوروں اور کامگروں کی محنت سے اب دیش کی تعمیر نو ہوگی۔ گورنر اتر پردیش کے ویبینار خطاب کے ضمن میں اخبار لکھتا ہے، گورنر اتر پردیش آنندی بین پٹیل نے راج بھون سے آدی ناتھ کالج آف ایجوکیشن للت پور کے ذریعے مہاتما گاندھی جی کی فلسفی پر مبنی ویبینار کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صفائی، دیسی اشیاء کا استعمال اور خود کفیل گاندھی جی کے ذریعے بتائے گئے ایسے منتر ہیں جو کورونا جیسے موذی مرض اور اس سے پیدا ہونے والے دشوار گزار حالات کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ مہاتما گاندھی جی نے باشندگان وطن سے ہمیشہ صفائی پر عمل کرنے، دیسی سامان اپنانے اور خود کفیل بننے کی جو اپیل کی تھی وہ آج بھی معنویت رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو پی این بی چیف مینیجر جنرل نے گورکھپور لنک ایکسپریس وے کے لیے 750 کروڑ روپے کے چیک پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج یہاں ان کے سرکاری رہائش گاہ پر پنجاب نیشنل بینک کے چیف مینیجر جنرل سوروپ کمار ساہا نے گورکھپور لنک ایکسپریس وے کے لیے منظور 750 کروڑ روپے کے خرچ کا چیک پیش کیا۔ اس موقع پر ترقی میں بینکوں کے اہم کردار پر چرچا کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بینک عام لوگوں کی زندگی کی سطح کو اٹھانے اور اس کے لیے وسائل کا بندوبست کرنے میں اہم اشتراک دیتے ہیں۔ اس سے روزگار کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعلیم اور صحت کے مد نظر گورکھپور پوروانچل کا اہم مرکز ہے، جہاں پڑوسی صوبہ بہار اور نیپال ملک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ گورکھپور کی ترقی کا فائدہ تقریباً 5 کروڑ کی آبادی کو ملتا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ لکھنؤ کے ٹھاکر گنج میں ریٹائرڈ میڈیکل افسر سے ڈکیتی کی کوشش، بھانجے سمیت اس کے 2 ساتھی گرفتار، اے ٹی ایم کھول کر 6 لاکھ کی چوری۔ پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ واقعے کو انجام دینے والا ماسٹر مائنڈ بینک کا ملازم تھا اور راشٹریہ لوک دل اتر پردیش کے سینئر لیڈر وسیم حیدر کی گلزار دہلوی کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی شائع ہوئی ہے۔ معزز سامعین، اپنا وطن صفحے پر ممتا بنرجی کے وزیر اعظم مودی کو خط لکھنے کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے پاور ترمیمی بل کو کسان اور غریب مخالف بتاتے ہوئے واپس لینے کی گزارش کی ہے۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر پاور ترمیمی بل 2020 کو واپس لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سے رابطہ کیے بغیر اس بل کو فائنل کیا گیا ہے۔ اپنے خط میں انہوں نے کہا ہے کہ پاور ترمیمی بل عوام مخالف ہے، کسانوں کے دشمن اور غیر منظم سیکٹر کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بل غیر انسانی بھی ہے۔ بائیں محاذ کے لیڈر سجن چکرورتی نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس بل کی ریاستی سطح پر مخالفت کی جائے۔ دوسری طرف 14 تنظیموں کی جوائنٹ کمیٹی نے اس بل کی مخالفت میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔
पेशानी की बाई जारी मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड इन फेडरल फैमिली फोटो फ्रेम को हिंदुस्तान की सकाफत अकदार के अहद से भरपूर रवादारी समझ में नहीं आएगी। खबर के मुताबिक अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सहाफियों से बातचीत में कहा कि हिंदुस्तान की रवादारी का DNA बदलने का इल्म देने वाले कांग्रेसी लाइल्मों को समझना होगा कि सर्व भंत सुखन सर्व संत नरामिया सनातन सकाफत और अकदार ही हिंदुस्तान का DNA था, है और रहेगा। मुल्क अपनी सकाफत अकदार रवादारी के किसी पॉलिटिकल मुनाफिकत की तजुर्बागाह में DNA टेस्ट का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की इसी सकाफत रिवायत अज़्म ने इतने बड़े मुल्क को कसरत में वहदत की डोर से बांधे रखा है। इसी सफ़े पर ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में पुलिस वालों की मुलाजिमत में शमूलियत के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस दिए जाने की खबर भी शाये हुई है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई घाटकों पर बम धमाके मामले में माखूज किए गए परभनी के मुलजिम ख्वाजा यूनुस, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, की पुलिस हिरासत में हुई मौत के जिम्मेदार पुलिस वालों को CID की तहकीकात के बाद मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन गुज़श्ता दिनों उन पुलिस वालों को मुलाजिमत पर बहाल कर दिया गया। आज ख्वाजा यूनुस की वालिदा की जानिब से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और होम डिपार्टमेंट को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया है और नोटिस में कहा गया है कि अगर 7 दिन के अंदर उन पुलिस वालों को मुलाजिमत से मुअत्तल नहीं किया गया तो मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उर्दू के मुमताज शायर गुलजार दहलवी के इंतकाल पर गालिब इंस्टीट्यूट की इजहार ताज़ियत की खबर भी अपना वतन सफ़े पर जली सुर्खी में है। खबर के मुताबिक गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि गुलजार दहलवी ने दहलवी तहजीब के मिटते नुकूश का करीब से मुशाहिदा किया था, जो उनकी शख्सियत और शायरी में यकसा तौर पर जाहिर हुए। गालिब इंस्टीट्यूट से उनका जितना पुराना और गहरा ताल्लुक था, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे इदारे से उतना कदीम और गहरा ताल्लुक उनका नहीं रहा। गालिब इंस्टीट्यूट ने उन्हें गालिब इनाम बराए शायरी भी पेश किया। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सैयद रजा हैदर ने कहा कि गुलजार दहलवी मुजाहिद आज़ादी के साथ मुजाहिद उर्दू भी थे। उन्होंने सारी उम्र उर्दू की खिदमत की और उसकी सरबलंदी के लिए कोशा रहे। उनके तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती, फारसी अदब पर कुदरत और हिंदी व संस्कृत के शेरियात से वाकफियत ने सही मानों में हिंदुस्तानी तहजीब का नुमाइंदा बना दिया था। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माशरत की खूबसूरत तस्वीर कशी मिलती है। मैं अपनी जानिब से गालिब इंस्टीट्यूट के ट्रस्टीज और पूरे अमले की जानिब से गुलजार दहलवी के पसमानदगान की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इदारा उनके गम में बराबर का शरीक है। सफ़े के ज़ैली हिस्से में मजहब और अदब के मौज़ूआत पर 20 जून को सेमिनार के इनेकाद की खबर में बताया गया है कि तस्खीर फाउंडेशन और द विंग्स फाउंडेशन दिल्ली के इश्तराक से 20 जून 2020 को ऑनलाइन एक रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें आलमी अदब में मजहबी मौज़ूआत का बयान के उन्वान पर हिंद पाक, अमरीका और मॉरिशस के मुतअद्दिद स्कॉलर्स अपने मकालात पेश करेंगे। खबर में कहा गया है कि यह सेमिनार जहाँ फ़रोग़ अदब के ज़िम्न में एक कदम है, वहीं बाहमी राबते की एक कोशिश भी है। इसके अलावा दिल्ली अक़लियत कमीशन की जानिब से नौजवान सहाफ़ी व शायर इरफान राही को फ़रोग़ उर्दू अवार्ड 2019 दिए जाने और इम्फाल में करंतिनिया मराकज़ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 8 अफराद को जेल भेजे जाने की खबरें भी सफ़ासात पर मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अवधनामा के आखिरी सफ़े पर पहली सुर्खी में कांग्रेस के रियासती सदर की रिहाई को लेकर कारकुनान के रियासतगीर मुजाहरे की खबर है। खबर के मुताबिक पार्टी के रियासती नायब सदर पंकज मलिक और वीरेंद्र चौधरी ने अदलिया पर पूरा एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हमारे रियासती सदर अजय कुमार लल्लू को इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पूरे सूबे में अजय लल्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ सेवा सत्याग्रह चला रही है, जिसके तहत गुज़श्ता 7 दिनों में 25 लाख जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से शहरी सदर मुकेश सिंह चौहान की क़यादत में गांधी मुजस्समे के सामने खामोश धरना देते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेसी अपने हाथों में झंडे और लल्लू की रिहाई की मांग के नारे लिखी तख्तियां और प्ले कार्ड लिए हुए थे। गिरफ्तारी से पहले कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प और हल्की नोकझोंक भी हुई। पेशानी की बाई जानिब साबिक वजीर आला मायावती का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों के साथ जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। खबर के मुताबिक SP सरबराह मायावती ने कहा कि किसी भी जात और मजहब की बहन और बेटियों के साथ इस्तेहसाल और मजालिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कसूरवार और मुलजिम चाहे वो किसी भी मजहब का हो, जात और पार्टी का सबसे बड़ा रहनुमा हो या फिर कितना ही असर और रसूख वाला शख्स हो। मुहतरमा मायावती ने हफ्ते के रोज कहा कि हाल ही में आजमगढ़ में एक दलित बेटी के इस्तेहसाल के मामले में कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भले ही देर से कार्रवाई की है, लेकिन ये दुरुस्त है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी KGMU के जेर एहतमाम वेबिनार की खबर भी सफा आखिर पर नुमाया है। खबर की तफसील के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंडोक्राइन सर्जरी शोबे के मुश्तरका जेर एहतमाम एक रोजा इंटरनेशनल वेबिनार का इनेकाद किया गया।
जिसमें मेहमान खुसूसी गवर्नर मोहतरमा आनंदी बेन पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब से वेबिनार में मौजूद सभी रिसर्चर्स व उम्मीदवारों को खिताब किया। गवर्नर ने कहा कि आलमी मौजी बरस कोरोना से निहायत खराब सूरत हाल पैदा हो गई है और अभी तक कोई वैक्सीन इसकी तैयार नहीं हुई है, जिसके लिए पूरी दुनिया में तहकीक की जा रही है और यह कदम बहुत ही काबिल सताइश है। इस मौके पर भाषा यूनिवर्सिटी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर और वहां पर दी गई सहूलियात जैसे खाना, तिब्बी सलाह वगैरह के लिए वाइस चांसलर की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में कदीम जमाने में भी जड़ी बूटियों से बने काढ़े और गुरुओं का इस्तेमाल करने से सेहत से मुतालिक मसाइल में काफी फायदा होता था। साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बयान भी जली तौर पर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खारजा पॉलिसी के महाज पर हुकूमत हिंद की नाकामी आया है। तफसील के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ मुल्क को कोरोना की वबा का सामना है और दूसरी तरफ सरहदों पर तनाव के बादल हैं। बीजेपी हुकूमत इन दिनों मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है, चूंकि बीजेपी हुकूमत इजारेदारी के फैसले करती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद का बयान भी सफ़े आखिर पर नुमाया है, जिसमें उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, लिहाजा गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें और न ही हुजूम वाली जगहों पर जाएं जहां इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। उन्होंने लोगों से यह भी दरख्वास्त की कि अगर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की कोई अलामत है तो फौरी तौर पर जिले अस्पताल में जाएं या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उसकी जांच करवाएं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय तकमील तिब कॉलेज की जानिब से कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने वाली यूनानी दवाओं की तकसीम किए जाने, इल्म सोसाइटी में गुलजार दहलवी के इंतकाल पर ताज़ियती जलसा मुनक़िद होने और माह के आखिर तक मदरसा इम्तिहानात के नताइज आने की खबरें भी सफ़ा आखिर पर शाये की गई हैं। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadhnama.com पर लॉग इन करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन आदाब। अवधनामा में शाये सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और उनकी तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। आज के अवधनामा के इदारती सफ़े पर मासूम मुरादाबादी का मजमून क्या दिल्ली फसाद की साजिश मुसलमानों ने रची थी के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि काबिल जिक्र बात यह है कि गुजरात फसाद की तर्ज पर बीजेपी सरकार ने मुलजिमान को सख्त सजाएं दिलाने के लिए तुषार मेहता और अमन लेखी जैसे बीजेपी के कुल वक्ती कारकुनों को सरकारी वकील के तौर पर मैदान में उतारा है ताकि कोई मुलजिम बचने न पाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इस फर्द जुर्म में पुलिस ने यह बताने की जहमत गवाला नहीं की कि उसने 3 दिनों तक जारी रहने वाले इन फसादात को रोकने के लिए क्या कुछ किया और मौके वारदात से कितने फसादियों को हिरासत में लिया गया। खुद वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि 300 लोग कत्ल गारत गरी करने पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे। पुलिस ने अपनी फर्द जुर्म में न तो उन लोगों का कोई जिक्र किया है और न ही यह बताया है कि ये कौन लोग थे और उनका ताल्लुक किस सियासी पार्टी से था। एक अहम सवाल यह भी है कि अगर वाकई यह फसाद मंसूबा बंद था और उसके लिए बाकायदा साजिश रची गई थी तो पुलिस का खुफिया महकमा इस साजिश का कबल अज़ वक्त सुराग लगाने में नाकाम क्यों रहा। इसी सफर पर दूसरा मजमून डॉक्टर मुश्ताक अहमद का बउनवान ट्रंप की आमरीयत से अमरीका की शबीह मस्ख है। इस मजमून में वो लिखते हैं कि जिस तरह अमरीका की मीडिया ट्रंप की हिमायत में अंधी है और नफरत को फरोग दे रही है, इसलिए अमरीका की यह तहरीक मुमकिन है कि खाना जंगी में तब्दील हो जाए और ट्रंप के खिलाफ न सिर्फ अमरीका में बल्कि पूरी दुनिया में महाज आराई का रास्ता हमवार हो जाए। इसलिए उन तमाम लीडरों के लिए अमरीका के सियाह फामों की तहरीक एक इंतबाह है जो खुद को जमहूरी लीडर तो कहते हैं मगर उनकी हरकत सकनात आमिराना है और नतीजा है कि दिन ब दिन मुल्क के अंदर इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो रही है जो अमरीका की सालमियत के लिए खसारा अजीम साबित हो सकता है। इदारती सफ़े पर ही शम्स तबरेज़ कासिमी का भी एक मजमून है जिसका उन्वान है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट फसाद से कब्ल लिखी हुई स्क्रिप्ट। फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़ने के बाद यह कहना मुश्किल है कि इसमें पुलिस की आजादी और खुद मुख्तारी शामिल है। आउटलुक की एक रिपोर्ट में यह बात भी सामने आ चुकी है कि दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में असल मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा है और उसी के बयान के बाद फसाद भड़का था। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ कपिल मिश्रा को बचाने का काम नहीं किया है बल्कि उसने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी है। आज के अदबी सफे पर पहला मजमून फारूक अरगली का है जिसका उन्वान है दिल्ली तहजीब का आईनादार उर्दू दुश्मनों के लिए तेगे बेनियाम पंडित आनंद मोहन जुस्सी गुलजार दहलवी। मजमून में फारूक अरगली गुलजार दहलवी की हयात और खिदमत पर तफसीली रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि कुरान करीम और गीता के तकद्दुस का परतव, इस्लामी आगही का अक्स, साधु संतों का प्रेम ज्ञान, बुजुर्गान दीन की अकीदतों से मुनव्वर, कदीम हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तमद्दुन का चमकता दमकता और चहकता हुआ खूबसूरत चेहरा, मीर गालिब ज़ौक़ मोमिन और दाग की फसाहतों का झुरझुर बहता हुआ आबशार, कौसर और तस्नीम और गंगा जमुना में धुले शफाफ लबो लहजे में बोलती हुई दहलवी तहजीब और चलता फिरता किले मोहल्ला।
ये है नाजिश उर्दू, गुलजार खुसरो, शायर कौम, तूती निजामी, बुलबुल हिंद, मुजाहिद आजादी और जानिसार उर्दू पंडित आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी। उनकी पूरी जिंदगी गैर मामूली मसरूफियतों और हमजहत सरगर्मियों में गुजरी है। शेर व शायरी, तालीम व ताल्लुम, आजादी की जद्दोजहद, सरकारी मुलाजिमत और आजादी वतन के बाद एक मखसूस उर्दू दुश्मन जहनियत से मुसलसल मारका आराई, कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश करना उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। तक़सीम के बाद जब हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब रहा था, गुलजार दहलवी अंजुमन तामीर उर्दू के जरिए 1947 की लुटी पिटी रैली में उर्दू के चिराग रोशन कर रहे थे। इसी सफे पर शायर परवेज शहरयार की नज़्मों के मजमूए भूख की हिमायत में पर खान मोहम्मद रिजवान का तबसरा भी शाया हुआ है, जिसमें मुबस्सिर लिखते हैं कि परवेज शहरयार अफसाने की दुनिया का एक अहम नाम है। जिस तरह उनके अफसानों का मौजू जिन्स है, उसी तरह उनकी नज़्मों का कलीदी मौजू भी जिन्स है। उन्होंने जिन्स के मौजू को मुतनव्वे मानी और पहलुओं से अपनी नज़्मों और अफसानों में बरतने की खूबसूरत और फनकाराना सही की है, जिसकी अहले अदब ने खातिर खास सताइश भी की है। जबकि इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बावजूद इसके परवेज शहरयार ने जिस खूबी, चाबुक दस्ती और फनकाराना तौर पर इंसानी नफ्सियात को पेश नजर रखकर इस मौजू को बरता है, वो काबिल दाद है और मुनफरिद भी। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर पहला मजमून सरफराज अहमद कासिमी हैदराबाद का बेहतर यही है वक्त की रफ्तार थाम ले है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि खिदमत खल्क को अपना मिशन बनाने की जरूरत है। इस्लाम ने मखलूक की खिदमत को अहम इबादत करार दिया है, लिहाजा इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। खिदमत खल्क के जज्बे से अपने स्कूल और कॉलेज के अलावा बड़ी तादाद में हॉस्पिटल के क़याम की भी शदीद जरूरत है और हर जिले में एक ऐसा मुस्लिम हॉस्पिटल जरूरी है जो असली सहूलियात से आरास्ता हो। मुसलमानों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है और वो अकेले कई कई हॉस्पिटल बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो कुछ लोग मिलकर इस तरह का काम करें, ताकि इस तरह की जो खबरें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आती रहती हैं कि मुसलमान होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया या मुसलमान होने की वजह से उनके साथ तासुब से काम लिया जाता है। इसी सफर पर दूसरा और आखिरी मजमून सफदर इमाम कादरी का है, जिसका उन्वान है कदीम नालंदा यूनिवर्सिटी के जवाल का हकीकी सबब जानना जरूरी है। आप लिखते हैं कि जिन तहकीकी वसाइल का इस्तेमाल करके नालंदा यूनिवर्सिटी के जवाल का सबब मुसलमान हुक्मरानों और हमला आवरों को बनाया जाता है, वो कतआन गैर मुसद्दिका है और तारीखी तासुब का मजहर है। हकीकत तो यह है कि बौद्ध मजहब के अंदरूनी इंतशार और ब्राह्मण मजहब की साजिशों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के तालीमी निजाम को बेएतबार, खोखला और समाज और असल मजहबी तालीम से इस कदर दूर कर दिया था कि उसके जवाल से किसी को परेशानी नहीं हुई। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की अजीम शान लाइब्रेरी में आग लगने या लगाने के बाद 6 महीनों तक किताबें जलती रहीं और आसपास के गांव या इलाके से कोई उसे बुझाने के लिए नहीं आया, तो इसके पीछे भी उस बेएतबार और बिगड़ी हुई मजहबी तालीम का ही हाथ है जो नालंदा यूनिवर्सिटी की फसील के अंदर दी जा रही थी और जिसे बाहर की दुनिया की कोई जरूरत नहीं थी। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से कोरोना वबा के शुबहात और हकीकत के उन्वान से मौरखा 14 जून 2020 बरोज इतवार शाम 3:45 पर मशहूर मारूफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान का जूम ऐप पर एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है, जिसकी मीटिंग आईडी है 854-1753-4314 और पासवर्ड है 445566। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर कूट रचित अभिलेखों के सारे नाम बदलकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी करने वाली फर्जी अनामिका का असली नाम अनीता सिंह है, जो गिरफ्तार हो गई है। इस गोरख धंधे की कलई खुलने के बाद यह फरार हो गई थी। अम्बेडकर नगर पुलिस ने इसे मैनपुरी जनपद से गिरफ्तार किया है और ऐसे ही कई जनपदों में जालसाजी करने वाले जालसाज पुष्पेंद्र को पुलिस तलाश कर रही है। अम्बेडकर नगर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रामनगर में तैनात अनामिका शुक्ला को जनपद पुलिस ने मैनपुरी जिले के थाना बेवर के लक्ष्मणपुर गाँव से गिरफ्तार किया है। जांच में महिला का असली नाम अनीता सामने आया है। प्रदेश के 25 जनपदों में ऐसे ही फ्रॉड के मामले पकड़े गए हैं, जिसमें शैक्षिक अभिलेख अनामिका शुक्ला के हैं और चेहरा बदलकर अलग अलग जनपदों में नौकरी कराई जा रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 6 जून को आलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद फर्जी अनामिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अम्बेडकर नगर एसपी आलोक प्रियदर्शी का कहना है, एक शिक्षा विभाग का काफी बड़ा स्कैंडल का खुलासा हुआ था, जिसमें एक अनामिका शुक्ला नाम की महिला शिक्षिका के द्वारा कई विद्यालयों में एक साथ पढ़ाए जाने की बात प्रकाश में आई। इस सूचना पे जब घटना का खुलासा किया गया तो कई जिलों में संबंधित BSS के द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा मुकदमे लिखाया गया। ऐसा ही एक मुकदमा हमारे थाना आलापुर में भी लिखाया गया था, जो ये फेक अनामिका शुक्ला थी उनके विरुद्ध। हमारे थाने की पुलिस ने तत्काल इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो इसकी ओरिजिनल
जो मुलजिमा हैं अनिता देवी, जो थाना देवर और जिला मैनपुरी की रहने वाली हैं, उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और उनसे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके यहाँ कस्तूरबा बाई बालिका विद्यालय जो रामनगर आलापुर में है, वहाँ पिछले कई साल भर से वो पढ़ा रही थी। देवरिया निवासी अब्दुल हमीद चौधरी का 20 वर्षीय पुत्र विगत 5 मई को मुंबई महाराष्ट्र के कैंसर मिल में बांसी रुदौली बॉर्डर पर सुबह 5 बजे पहुंचा था, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैंडम सैंपल भेजा गया था, जिसकी बीती रात रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शनिवार की सुबह एसडीएम शिव मूर्ति सिंह ने गांव पहुंचकर गांव को सील कर दिया है। विश्व में समता, समानता व बंधुत्व का भाव जागृत करने वाले मुक्ति आंदोलन के पुरोधा संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज के जीवन साहित्य दर्शन पर जल्द सीरियल शुरू होगा। शनिवार को मोहल्ला कायस्थवाड़ा में स्टार फिल्म स्टूडियो के संचालक व सीरियल निर्माता अभय दास ने बताया कि दर्शकों की मांग को देखते हुए सद्गुरु स्वामी समन दास जी महाराज के शुभाशीर्वाद से सद्गुरु रविदास महाराज के साहित्य का दर्शन जन जन तक पहुंचाने के लिए रविदास दर्शन सीरियल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी वो संत रविदास के जीवन पर शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं। रेलवे अस्पताल से शनिवार को गोरखपुर जनपद के 18 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। इन मरीजों में 8 पिपराइच, 3 बेलघाट, 1 भटट, 2 खजनी, 1 बांसगांव, 1 उर्वा, 1 गोला एवं 1 चरगावा के मरीज शामिल रहे। इनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने सभी कोरोना विजेताओं को फल, स्वच्छता किट और ड्राई फ्रूट देकर विदा किया। वहीं मरीजों ने भी रेलवे अस्पताल को बेहतर व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे परिवार संपर्क अभियान व पीएम पत्र वितरण कार्यक्रम का संचालन पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी की कमान संभालते हुए जिला पंचायत प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने गांव-गांव भ्रमण कर लोगों से गहन मुलाकात की। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने, कोरोना से बचाव एवं मास्क वितरण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह व जिला मंत्री भाजपा ब्रजेश सिंह ने लोगों से संपर्क किया। भाजपा रुधौली विधायक रामचंद्र यादव ने रुधौली नगर के काजीपुरा मोहल्ले में प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के सुशासन की उपलब्धियों का पत्र घर घर जाकर वितरित किया। विधायक ने केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक जनहितकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। सोनभद्र के 402 ओबरा विधानसभा के अंतर्गत राजस्व ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी एक बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद भी क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा का अभाव होने के कारण जनता दर दर भटकने को मजबूर एवं विवश है, जबकि खनन एवं लघु उद्योग से सरकार को सबसे अधिक राजस्व इसी पंचायत से मिलता है। ये बातें AK गुप्ता ने ओबरा विधायक संजीव कुमार गोंड को ज्ञापन देते हुए मांग की। केरल में AMU के मल्लारपुरम सेंटर से LLB कर रहे छात्र की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के मोहल्ला बेगपुर के रहने वाले अरीब हसन पुत्र शकील अहमद मल्लारपुरम में कमरा लेकर पढ़ाई कर रहे थे। शुक्रवार को वो 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीणों ने तीनों को नदी से निकाल लिया था। वहीं 2 छात्र सही हैं, लेकिन अरीब के उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिलने पर परिजन मल्लारपुरम के लिए रवाना हो गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब रेलवे भी तैयार है। इस महामारी से निपटने के लिए रेलवे ने कोविड केयर सेंटर के रूप में आइसोलेशन कोच तैयार किया है। कोच की तैनाती के लिए उत्तर प्रदेश के 24 स्टेशनों को चयनित किया गया। इसमें आदर्श रेलवे स्टेशन आजमगढ़ भी शामिल है। रेलवे स्टेशन पर राज्य सरकार की मांग पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। कानपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग को लेकर फूलबाग गांधी प्रतिमा के समक्ष सड़क पर बैठकर मौन धरना दिया। कांग्रेस जनों ने पहले गांधी प्रतिमा स्थल पर धरना देने का कार्यक्रम बनाया था, जिसकी सूचना भी जिला प्रशासन को दी जा चुकी थी, लेकिन इन मौके पर गांधी प्रतिमा स्थल बंद और गेट पर प्रशासन का ताला लगा देकर आक्रोशित कांग्रेस जनों ने सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। नस्सार भी कहते हैं, नक्काद भी कहते हैं, इस शहर निगारा का मेयार अवधनामा।